نبی نے تعجب خیز فیصلہ کیا، اے حبار تم نے میری بیٹی کے اوپر نہ تنجگر، بڑی بیٹی کے اوپر تم نے تیر چلایا تھا، حالانکہ نبی میں ہی وہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، قدمہ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا آخری پہر ہے. مجھ سے پہلے کانپور سے تشریف فرما ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ نے بڑا ہی شاندار خطاب آپ کے سامنے کیا. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، کیسے گناہوں سے بچا جائے، توبہ کیسے کیا جائے. ہم قرآن کریم سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے.
اور انہی دونوں آیتوں کی ارد گرد آج ہماری تقریر گھومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو، ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، ہم تمہیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ریس لگاتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو۔ اس نے بلڈنگ بنائی تو میں بھی بناؤں گا، اس نے گاڑی بنائی، اس نے گاڑی خریدی تو میں بھی گاڑی خریدوں گا، اس نے فلاں جگہ زمین خریدی تو میں بھی زمین خریدوں گا، اس نے شادی بیاہ میں اتنی گاڑیاں لے کر کے گیا اپنے بیٹے کی شادی میں جا بارات کے طور پر، میں بھی اس سے زیادہ گاڑیاں لے کر کے جاؤں گا۔ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، آئی میرے بندو ہم تمہیں کمپٹیشن بتاتے ہیں، اور میرے بندو اور میرے بندیوں ذرا اس کمپٹیشن کو کر لو، اس مقابلے کو تو کر لو۔ وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اے میرے بندو ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں دوڑ لگاتے ہو، دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تم کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، جنت کے لیے تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، نیکیوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن ہاں غلط کام میں کمپٹیشن ضرور ہے۔ ایک لڑکا نے دکھایا ہے، یہ دیکھ میری گرل فرینڈ ہے، اچھا میرے موبائل کے اندر دیکھو کتنی گرل فرینڈ سے میری چیٹنگ ہوتی ہے، 2 4 5 10۔ دوسرا کہتا ہے تجھ سے میں کم نہیں ہوں، تیرے 10 سے تو میرے 20 ہیں، کمپٹیشن پہ کمپٹیشن۔ اگر کسی نے جہیز کے طور پر 2-4 لاکھ روپے لیے تو اس کا بھی کوئی باپ نکلا، اس نے 10 لاکھ لے لیا۔ کس نے موٹر سائیکل جہیز کے طور پر لی تو کسی نے کار خرید، کسی نے جہیز کے طور پر کار ہی لے لی۔ ہمارے سماج میں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ تو شراب پیتا، ہاں کتنا بوتل پی سکتا ہے؟ 2، ہم 4 پی لیں گے۔ آج ہمارے یہاں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ قرآن کہتا ہے اور میرے بندو اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو رب کی رحمت اور رب کی مغفرت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، رب کی جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمان کی برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے دماغ میں چوڑائی اور لمبائی پوچھا جائے، ارے زمین اتنی چوڑی، آسمان اتنی لمبائی،
ہمارے ذہن میں اس سے بڑھ کر کے کچھ ہے ہی نہیں. ہماری اس کھوپڑی میں اس دماغ میں بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کی چوڑائی کو بیان کیا ہے، حالانکہ جنت کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے جنت عرضها السماوات والارض. اس جنت کی کمپٹیشن کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کہیں قرآن میں اتنا کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں کمپٹیشن کرو جنت کے لیے، اس جنت کے لیے کہ جنت عرضها کعرض السماء، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے تم مقابلہ کرو. اب کمپٹیشن کے لیے مقابلہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کن سے کیا ہے؟ کیا شراب پینے والوں سے کیا ہے؟ کیا زنا کرنے والوں سے کیا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والوں سے کیا ہے؟ کیا زمین و جائیداد کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، او میرے بندو او میرے بندیوں، ہم نے جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے، پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار رہے، جو دیندار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خوف الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہے، ان کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جو گھر کے اندر بھی ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے گھر کے اندر بھی رکھتا ہو، مسجدوں کے اندر بھی رکھتا ہو، مدرسوں کے اندر رکھتا ہو، جلسہ جلوس کے اندر بھی ڈر رکھتا ہو، اور اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اس حال میں رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سی سی ٹی وی کیمرے کے ضبط میں ہوں. اگر کوئی حرکت کروں تو میرا ریکارڈ اور میری حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لے گا، اور کل قیامت کے دن میری حرکتوں کو دکھا دے گا. اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. جنت دیکھیے، غور کیجیے. کون بچی بھائی؟ بچی ہے سمیہ نام ہے، گوپال پور کے ہیں. ان کے والد کا نام رئیس ہے. ان کے والدہ کے والد نہیں، ان کے والد کا نام رئیس ہے. اچھا، یہ سمیہ نام کی بچی اسٹیج میں بتائیے. جلسے میں کبھی کبھی ماں غائب ہو جاتی، کبھی باپ غائب ہو جاتا ہے. عجیب حال ہے بھائی. کم سے کم بچے کو چھوڑ کے مت جاؤ نا، کہیں جانا بچہ ہی کو لے کے جاؤ. گوپالپور کے کوئی صحابی میں جن کا نام رئیس ہے، اس بچی کا نام سمیہ ہے. بچی گم ہو گئی ہے، اسٹیج کے پاس ہے. گزارش ہے آپ اسٹیج کے پاس آ کر بچی کو لے جائیں. بچی گم نہیں ہوئے، باپ گم ہوا. یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. بچی تو سامنے ہے، باپ گم ہوا ہے کہ کہاں گیا پتہ لگایا جائے. بہت گڑبڑ معاملہ ہے اتنی رات کو گم ہو جانا. متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، حالات کو دیکھو. آج متقی نہیں ہے، ہم پرہیزگار نہیں ہے، ہم دیندار نہیں ہے. غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری دینداری کہاں گئی؟ آج ہمارا تقوی کہاں گیا؟ جلسہ چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ نہ جانے کن لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں سوچو، یہ کون سا تقوی ہے؟ آؤ، تقوی کی بات اگر ہو رہی ہو اور متقیوں کے لیے اگر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تو کون ہے جنتی؟ ہم کسی کو جنتی نہیں بنا سکتے ہیں، کسی کو جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو ہری جھنڈی نہیں دے سکتے ہیں. اے اللہ تو ہی بتا جنت کسے ملے گی؟ ایسی جنت میرے بھائیوں جن جنت مینار میں پہنچ گیا تو جنت کے اندر کبھی آدمی کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ
जन्नतियों में जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला ऐलान अपने फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों ऐलान कर दो, इन जन्नतियों को खुशखबरी सुना दो कि दुनिया का टेंशन अब यहाँ ना होगा। दुनिया के अंदर मरने का डर था, दुनिया के अंदर टेंशन था, दुनिया के अंदर जवानी का टेंशन था कि बुढ़ापा हो जाएगा, आदमी बूढ़ा हो जाएगा। आई मेरे फरिश्ते ऐलान कर दे, फरिश्ता उस जन्नतियों से ऐलान करेगा जो जन्नत में चला जाएगा, इन्नल मन तहियौ फला तमूतु अबदा। ऐ जन्नतियों, अब तुम जन्नत के अंदर आ चुके हो, मरने का डर तुम्हें दुनिया के अंदर था, कोरोना का तुम्हें डर था और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों का डर था। उस मौत से और कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए तुमने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन से ना हो पाया तुमने डोज लगवाए और उस डोज से ना हुआ तो तुमने बूस्टर का भी डोज लगवा लिया, फिर भी तुम मरे। लेकिन आई जन्नतियों, अब तुम जन्नत में आ चुके हो, अब तुम्हें कोई दूसरा डोज लगाने की जरूरत नहीं है। इन्नलकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। आई जन्नतियों, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, अब तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, हमेशा के लिए। जन्नत देखिए, व इन्नलकुम अन तहरमु फला। ऐ मेरे बंदो, तुम ये समझते थे दुनिया के अंदर कि हम बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम जवान हमेशा न रहेंगे। जवानी के लिए न जाने तुमने कितनी गोलियां खाई, कितनी दवाइयां इस्तेमाल की। जिस किसी ने बताया ये खा लो जवानी वापस आ जाएगी, तुमने उस दवाई का इस्तेमाल किया लेकिन जवानी वापस ना आई। आई जन्नतियों, अब तुम्हें जन्नत में इसका टेंशन न होगा, तुम कभी बूढ़े न होगे, जन्नत पहुंच चुके हो, अब ना मरोगे, न बूढ़े होगे, न दुनिया की टेंशन, न मरने का टेंशन, न बाल बच्चे का टेंशन। उस जन्नत की तैयारी करो, उस जन्नत के अंदर मुत्तकी लोग जाएंगे। और कौन मुत्तकी है? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। अपने आप को देखिए, मुत्तकी हम हैं कि नहीं है? भाई हम किसी को नहीं, ये नहीं कहते हैं, हम किसी को बारे में बोल देंगे कि ये मुत्तकी है, ये मुत्तकी है। कुरान की सायत की ज़िम्मे में हम उड़ात आते कि नहीं आते हैं? मुत्तकी वो कुरान कहता है युनफिकूना फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा, जो अमीरी में, जो मालदारी में, खुशहाली में, रईसी में, मालदारी में जो अल्लाह के राह में खर्च करता हो। मुत्तकी वो है जिसको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, पैसा दिया है, दौलत दी है, बैंक बैलेंस उसके पास है, लेकिन अब भी कंजूसी नहीं कर रहा है। पैसे आए, उस पैसे की कदर कर रहा है, समझ रहा है पैसा है, चलो अल्लाह के राह में खर्च कर लेता हूँ। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा, जो अमीरी में अल्लाह के राह में खर्च करता हो, वज़्ज़र्राई, और जो गरीबी में, तंग दस्ती में, गरीबी में, तंग दस्ती में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो, मुत्तकी वो है। अमीरी में भी और गरीबी में भी। अभी 1-2 साल पहले जैसे कोरोना की वबा आई, अरे इतने कंजूस लोग हो गए कि चंदा देना ही बंद कर दिया। घर के अंदर तो रोजाना मुसल्लम चलता था, कोई मौलवी चंदा के लिए कुछ नहीं है, सब तो खत्म हो गया है। रोजाना गोश्त खा रहा है लेकिन अल्लाह के राह में नहीं दे रहा है। युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, जो अमीरी में भी और गरीबी में भी, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो। मुत्तकी वो है जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो कंजूसी नहीं करता है। कुछ लोगों को देखिए कि बहुत कुछ मिल जाने के बाद कुछ भी नहीं निकालेगा, वो मक्खी चूस बन जाएगा। मक्खी चूस समझते हैं? मक्खी दूध के अंदर गिर जाए और उस मक्खी को उठा करके चूस ले और फेंक दे, उसको बोलते हैं मक्खी चूस। कुछ लोग अमीर होकर के भी मक्खी चूस, गरीब आदमी तो मदरसा हयाउस सुन्नह के नाम पर 5-5, 10-10 हजार दे देता है।
लाखों करोड़ों की बिजनेस करने वाला 500 दे करके चला जाता है। ये महाकंजूस नहीं तो फिर और की है। अल्लज़ीना युनफिकूना बिस्सर्रा वज़र्रा, मुत्तकी वो है, परहेज़गार वो है, जन्नती वो है जो अपने मालों को अल्लाह के राह में, अमीरी में गरीबी में दोनों हालतों में खर्च करते हैं। अमीरी में भी खर्च कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ही फरमाया था, ओ लोगों अमीरी को गनीमत जानो, बुढ़ा अमीरी को गरीबत जानो। गरीबी आने से पहले आज तुम अमीर हो, आज तेरे पास बैंक बैलेंस है, आज तेरे पास पैसे, खर्च कर लो। ऐसा नहीं है कि आज अमीर हो, एंजॉय कर लो, मस्तियां कर लो, शादियों में 10-10 लाख खर्च कर लो, लेकिन अल्लाह के राह में देने की बात आई तो तेरी जेब से 10-20 रुपया देने में नानी याद आ जाए। आज अमीर हो तो खर्च कर दो, क्योंकि ये अमीरी ये गनीमत है। कभी कभी अल्लाह ताला अमीर बना करके आजमाता है, कभी कभी अल्लाह ताला दौलती बना करके आजमाता है। आज अमीर हो, खाना काबा की ज़ियारत कर लो, हज कर लो, उमरा कर लो। मेरे भाइयों, इससे पहले कि तुम कंगाल बन जाओ, इससे पहले कि तुम फकीर बन जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ में पैसे ही ना हो, इससे पहले कि तुम मर जाओ, कि तुम अल्लाह के राह में खर्च कर लो। अमीरी में अल्लाह के राह में खर्च करो। बहुत से लोग हैं अमीर हैं लेकिन अल्लाह के राह में देते नहीं है, अमीरी में नहीं देते। ऐसे ऐसे अमीर गुजरे, कायनात ने ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे ऐसे अमीर और ऐसे ऐसे सखी दुनिया के अंदर गुजरे कि कोई आदमी अगर उसके पास गया और अपनी हाजतें रखी तो अमीर ऐसा और सखी ऐसा कि सामने वाले की हाजत को पूरी कर दिया, अपने आप के अंदर कुछ भी न रखा, सब कुछ दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी निकले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के राह में अमीर हो तब भी खर्च करो, गरीब हो तब भी खर्च करो। आज अमीर हो, आज तुम अल्लाह के राह में खर्च कर सकते हो, लेकिन कल गरीब बन जाओगे, कल कंगाल हो जाओगे, तेरे पास पैसे ही ना होंगे, तो हाथ मलता रह जाएगा, अफसोस करता रह जाएगा। मुत्तकी वो है जो अमीरी और गरीबी में दोनों पोजीशन में, दोनों हालतों में खर्च करता है। ऐसा नहीं है अभी कोरोना की हालत में कितने मदारिस के उलमा की तनख्वाह रोक दी गई। अवाम कहती है इनको क्यों तनख्वाह देंगे, हम ये तो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। तो क्या मौलवियों को क्या फरिश्ता ला करके पैसा देगा? मेरे भाइयों, कोरोना की वबा में तेरी आजमाइश हुई तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है कि अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है। तूने मौके का फायदा उठाया, तेरे पास पैसे तो जरूर थे लेकिन तूने अल्लाह के राह में खर्च न किया, तुमने अपने पैसों को जमा करके रखा। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अमीरी और गरीबी, तंदुरुस्ती, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च कर। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अमीरी में भी खर्च किया है और गरीबी में भी खर्च किया है, और ऐसा खर्च किया कि कायनात ने वो मंजर भी देखा है, कायनात ने वो मंजर भी देखा है। मेरे भाइयों, जिनके पास खर्च करने के लिए कुछ भी न था, खर्च करने के लिए कुछ भी न था, अल्लाह के राह में खिलाने के लिए कुछ भी न था, लेकिन अगर मांगने वाला आया और कहने लगा सैयद लिल्लाह, अगर कोई चीज खाने पीने की हो तो हमें दे दो। अब घर के अंदर सिर्फ उसके बाल बच्चों ही का खाना है, लेकिन वो खाना भी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। रसूल अकरम के मेहमान तक को भी खिला दिया। मेरे भाइयों, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो गरीबी में, तंगदस्ती में अल्लाह के राह में खर्च किया करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च किया करते हैं। और खर्च करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब आप समझते हैं खर्च करने से माल घटता है, नहीं मेरे भाइयों, हमें और आपको लगता है कि खर्च करने से हमारा माल घट रहा है, लेकिन मेरे भाइयों क्या पता जो खर्च तुम 10 रुपया
کر رہے ہو, اسی خرچ کرنے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر جو مصیبت آنے والی تھی, جس میں 10,000 خرچ ہونے والے تھے, تم نے 10-20-100 روپیہ تم نے خرچ کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے 10,000 کی مصیبت کو بھی دور کر دیا. تو یہ خرچ کرنا مومنوں کی علامت ہے, متقیوں کی پہچان ہے, جنتیوں کی پہچان ہے. الذین ينفقون في السراء والضراء, متقی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. دونوں حالتوں میں. غریبیں تب بھی کر رہے ہیں. مسجد میں گیا, پہنچا, ہمارے یہاں تو جمعے میں مسجد میں چندہ ہی ہوتے بھائی. مسجد پہنچتا ہے, چندے کے اس ڈبے کے اندر 5 روپیہ ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے جنت میں نے کنفرم کر لی. چائے کے لیے, گٹکا کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے روزانہ 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے. لیکن جب رب کے راہ میں اور اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو 5 سے 10 روپیہ ہی نکلا. میرے بھائیوں, آج کے فقیروں کو ٹرینوں کے اندر یا پھر اگر کسی اسٹیشن کے اندر آپ جاؤ اور 5 روپیہ اس کو دو, پہلے دیکھیے گا 5, اپنے جیب سے وہ 10 نکالے گا, لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے. میرے بھائیوں, جب یہ فقیر دنیا کے فقیر 5 روپیہ لینا گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو تم اللہ کے راہ میں تم 5 اور 10 روپیہ دیتے ہو, شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ کیسے متقیوں, امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ خرچ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور آئے قدمہ کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے میری بات سننے والوں سنو, آج مال خرچ کر لو, کیونکہ موت کے سمے انسان جس بات کا افسوس کرے گا, جس بات کے بارے میں فکر مند رہے گا, وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں سوچے گا. اور لاسٹ میں فرشتہ سے کہے گا فیقول یا ربی, فیقول, وہ مرتے سمے انسان چیخ کر کے کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کاش کہ مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا ہوتا. یعنی موت کے سمے اس کو یہ مال خرچ کرنے کی فکر رہی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ مال خرچ کرنا اس کو قیامت کے دن بڑا فائدہ پہنچائے گا. مال کا خرچ کرنا کل قیامت کے دن جب اللہ کی سایہ کے علاوہ, عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سائے کے نیچے جگہ دے گا جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہو لیکن دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلتا ہو. میرے بھائیوں, فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. 1-2 دن مجھے مہلت دے دے, میں بینک سے پیسہ نکال لوں اور میں مدرسے میں دے دیتا ہوں, میں مسجدوں میں دے دیتا ہوں, یتیموں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں, غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. لیکن موت آ جانے کے بعد, موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد, اے مسلمانوں 1 منٹ کا تمہیں موقع نہ ملے گا, 1 منٹ کا تمہیں چانس نہ ملے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, اپنے مالوں کو اپنے زندگی میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. یہ ہے متقیوں کی پہچان. 2 بات ہو گئی, امیری میں اور غریبی میں, دونوں حالتوں میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے. دونوں حالتوں میں غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس 100 ہی روپیہ ہے اور آپ نے 10 روپیہ دے دیا, اللہ دیکھ رہا ہے بندے کی پوری پراپرٹی یہی ہے, یہی ان کی پوری پونجی ہے. 100 روپیہ میں 10 روپیہ دے دیا, بہت دیا. جس کے پاس لاکھ روپیہ ہو, اگر وہ 100 روپیہ دیتا تو کیا کر رہا ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تیری صورتوں کو نہیں دیکھتا,
तेरे बिल्डिंगों को नहीं देखता, तेरे बैंक बैलेंस को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तेरे अमाल को देखता है, अल्लाह तेरे दिल को देखता है। इस बंदे के दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह के लिए 100 रुपया लेकर किया जाता, जलसे के अंदर 500 रुपया लेकर किया जाता, लेकिन 500 रुपया इस अल्लाह के राह में दे दिया, तेरे दिल को अल्लाह देखता है। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे दिलों को देखता है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुत्तकी करार दिया है जो अल्लाह के डर की और अल्लाह के खौफ की वजह से अपने माल को देते। अब आगे देखिए 4 बातें इस आयत के अंदर, 4 ही बातें आज बोलूंगा बस। वल काज़िमीनल गैज़, मुत्तकी कौन? ऐ कदमा के लोगों सुनो, जन्नती कौन? हम नहीं। बहुत से कटमुल्ला दुनिया में पैदा हुए, किसी को जन्नती करार देता है, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना। आपने सुना नहीं, एक बहुत बड़ा बाबा पीर ने जिसको चाहता था जन्नत का सर्टिफिकेट देता था, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना। गुस्से में एक दिन आकर के कह दिया किसी से, हो गया होगा उसको मुर्गा मुसल्लम नहीं खिलाया होगा, बोल दिया अंत फिन्नार, तू जहन्नम के अंदर चला जाएगा, तू जहन्नमी है। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया के अंदर आए हैं जो जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट दुनिया के अंदर दिया करते हैं। मेरे भाइयों, वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्सा को पी जाया करते हैं, गुस्सा के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते हैं, वो जन्नती है। गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना। आजकल तो मुसलमानों को देखता हूँ गोश्त खा खा करके होश खो गए, होश खत्म है। अब इतना गुस्सा आता है, कभी अपने बीवी को मारा, कभी अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया, कभी अपने बहनों के ऊपर हाथ उठाया, कभी अपने समाज के बुजुर्गों को बुरा भला कह दिया। गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा इतना कि अपने बीवी को तलाक 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 दे दिया, और मौलाना को 12 बजे रात फोन करके परेशान कर रहा है। 12 बजे मुझे साहब ऐसा हो गया, मैंने गुस्से में तलाक तलाक तलाक। अब हम रात भर में तुमको फतवा देते चले आए, इतना गुस्सा। वल काज़िमीनल गैज़, इतना गुस्सा न कर मेरे भाइयों, गुस्सा को पी जाने वाले बनो, गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करने वाले बनो। गुस्सा है तो गुस्सा को पी जाया करो, गुस्सा को कंट्रोल कर लो। ये बहुत ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने ज्यादा गुस्सा किया तो आप अपने बड़ों को गाली दोगे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहोगे, अपने भाइयों को बुरा भला कहोगे, अपने समाज के लोगों का दिल दुखाओगे। मेरे भाइयों, इसी जबान की गारंटी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ली है। भाई लोगों, तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। मय्यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्नह। मुझे तुम जबान की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। और अल्लाह के रसूल से जब सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल ये बताइए, ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर किस वजह से जाएंगे? ऐसे मौके पे आपने जवाब दिया था अल्फामो वल फर्क, ज्यादातर लोग इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को सताने वाले हैं, जो अपने बगल वाले को सताने वाले, अपने माँ बाप को सताने वाले, अपने बीवी को मारने पीटने वाले, अपने समाज के लोगों का दिल दिखाने वाले हैं। गुस्से की हालत में न जाने क्या हो जाता है मेरे भाइयों, आप इससे बाहर हो जाता है और अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, अपने समाज के लोगों को मारता और पीटते रहता है। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, सारा गुस्सा उसी में उतारेगा, और लास्ट के समय जब इफ्तारी के टाइम असर बाद देखिए, कुछ कह दीजिएगा ना, ऐसा लगता है करंट लगी, इतना गुस्सा। वल काज़िमीनल गैज़, मुत्तकी वो है जो गुस्सा को पी जाया करते, गुस्सा के ऊपर कंट्रोल कर लिया करते। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता कि वो मोमिन है, वो मुत्तकी है, वो दीनदार है। और हमारी और आपकी नजर में, हमने और आपने बहादुरी की सर्टिफिकेट और पहलवानी की सर्टिफिकेट
نے کسی کسی کو دے دی. جو بڑا غصہ کرتا کسی کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے, اس کو ہم نے اور آپ کو بہادر قرار دیا ہے, اس کو ہم نے اور آپ کو پہلوان قرار دیا ہے, اس کو ہم نے اور آپ کو جری قرار دیا, بہادر قرار دیا. محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں, محمد رسول اللہ کے فرمان میں وہ بہادر ہی نہیں ہے جو کسی کو پٹک دے, کسی کو تماچا لگا دے, کسی کے اوپر گولی چلا دے, کسی کے اوپر بندوق پھینک دے, کسی کے اوپر گولی مار دے. وہ بہادر ہی نہیں ہے. امام کائنات نے اس کو بہادر قرار دیا ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. امام کائنات کی نظر میں بہادر وہ ہے, پہلوان وہ ہے, طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو, اپنے غصے کے اوپر قابو کرنے والا ہو, غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جانے والا ہو. فرمایا امام کائنات نے سب سے بڑا بہادر تو ہے جو غصے کی حالت میں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے, اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کرے, اور اللہ کی نظر میں وہی متقی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصہ کو پی جایا کرتا ہو. دیکھ رہے ہیں آج اسی غصے کی وجہ سے پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے. غصے کی وجہ سے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا, غصے کی وجہ سے بیوی کو مارا, غصے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا, غصے کی وجہ سے سارے مقام کو بھلا دیتے ہو. ان الجنت تحت قدمیہا, امام کائنات کی ڈکشنری میں ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن غصے میں آدمی اپنے ماں باپ تک کو بھی برا بھلا کہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس غصہ سے چھٹکارا پانا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. غصہ آئے گا اگر اس کو کوئی کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, ہم کو لگتا ہے پورا غصہ اسی کے اوپر اتار دے گا. ابھی سمجھانے کے لیے آیا ہے, لے لاٹھی, لے ڈنڈا, لے گھوسا, شروع کر دے. تقریر جلسوں میں آدمی نہیں سنتا, غصے کی حالت میں سنے گا, سمجھانے کے لیے جائے گا اسی کے اگر دو لات مار دے گا. فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, اور جب تب بھی غصہ کنٹرول نہ ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اگر تب بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو امام کائنات فرمایا وضو بنا لو. اب بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر لو. یہ نسخہ اور یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے. کتنے لوگ ہیں غصے کی حالت میں ان نسخوں کو استعمال کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ نہیں. غصے کی حالت میں دوسرا آدمی آگ میں پٹرول ڈالے گا, تم اتنا کمزور, اس نے اتنا کچھ کہہ دیا تم کچھ نہیں کر رہے ہو, اتنا کہنا بجھانا دھن شروع ہو گیا. کوئی سمجھانے جائے گا, تقریر کرے گا, نصیحت کرے گا, کیا اعوذ باللہ پڑھ لے. آج سماج کو لڑانے کا کام کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو مار لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, وہ اچھا نہیں ہے جو دوسروں کو لڑاتا ہو, بلکہ وہ اچھا ہے جو دوسروں کو ملانے والا ہو. گرچہ ایک دوسرے کو ملانے کے لیے تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے, جھوٹ ہی بولنا پڑ جائے, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو ملا دو, اپنے مسلمان بھائیوں کا دل ملا دو, آپس میں دونوں کو سلام کرا دو, غصہ کو ختم کروا دو. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے بولا جاتا ہو, لوگوں کو آپس میں محبت کرانے کے لیے بولا جاتا ہو, لوگوں کو آپس میں سلام کرانے کے لیے بولا جاتا ہو, وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. آج میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھو, غصے کی حالت میں لوگ نہ جانے کتنے قدم سے اٹھا لیا کرتے ہیں کہ ہم سسرال نہیں جائیں گے, ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائیں گے, میرے ماں باپ نے مجھے ستایا, میرے ماں باپ
آپ نے مجھے پریشان کیا, میرے چچا نے مجھے دکھ دیا ہے, میرے رشتہ دار والوں نے میری زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہے. میرے بھائیوں, غصے کے اوپر کنٹرول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر بھی کنٹرول کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کر لیا کرتے تھے. آپ نے کبھی وہ منظر بھی سنا ہوگا, آئی میرے بھائیوں, جب ایک دیہاتی آدمی امام کائنات کے دربار میں آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے, سب کی بیچ میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کرسی کے اندر براجمان ہے اور سارے لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں, سب لوگ زمین کے اوپر, تو محمد رسول اللہ بھی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس دیہاتی آدمی نے کہا, من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ کون ہے؟ من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ اب اتنے لوگوں میں ہمارے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب کو کوئی آئے, حقانی کون؟ حقانی کون؟ اٹھا کے نہیں پٹک دے گا؟ ارے کم سے کم عزت کر, اچھے سے بول. سامنے سے کوئی ایسے بولے گا تو بتائیے اس کو آپ ماریے گا نہیں. اب نبی جیسی ہستی کو وہ چیخ کر کے کہتا ہے, کون محمد ہے بتاؤ, کون محمد, کون محمد؟ صحابی نے کہا, وہ دیکھیے ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آدمی گیا, جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات نہ کی, آپ کی گریبان کو پکڑا, چادر کو پکڑا اور چادر کو مروڑنے لگا, کھینچنے لگا. نبی اکرم نے اس کو دیکھا, مسکرانے لگے. آپ نے غصہ نہ کی, کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو محمد ہو, کہا کیا محمد رسول اللہ ہو, کہا نہیں مانوں گا. کھینچ کر کے گریبان پکڑ کر کے کہتا ہے, ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ تم قسم کھا کر کے نہ کہو گے, اللہ کی قسم کہو, اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ ہوں. کھینچ کر کے کہہ رہا ہے. ہم اور آپ کوئی آدمی آ کر کے ہم ہی کو گریبان پکڑ کر کے, تم ہی مولانا ابوالکلام, دھڑا دھڑ, بعد میں ہم تم کو بتائیں گے ہم کون ہیں. گریبان پکڑنے کی جرت تیری کیسے ہوئی؟ نبی اکرم غصے کو پی جانے والے تھے, اور آپ نے غصے کے اوپر کنٹرول کیا اور مسکرا کر کے کہا, اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ ہوں. اس نبی, اس اللہ کا آخر رسول, آخر بندہ ہو, آخر رسول, آخر پیغمبر ہو, آخر رشی منی ہو, بتاؤ کیا شکوہ شکایت ہے؟ اس نے کہا مجھے چند سوالات کرنے ہیں. کہا پوچھو, کون سے سوالات ہیں؟ اس نے کہا کیا اسلام لانے کے بعد کیا مسلمانوں کے پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں فرض ہے. اس نے پھر گریبان کھینچا, کہا کہ اے محمد میں ایسی تمہاری بات نہیں مانوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے نہ کہہ دو, تب تک میں تمہاری بات کو نہیں ماننے والا ہوں. نبی نے مسکرایا اور مسکرا کر کے جواب دیا, اللہ کی قسم, ہمارے اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں, اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. پھر کھینچ کر کے کہتا کیا مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا, ہر سوال کا جواب آپ نے مسکرا کر کے دیا. گریبان ابھی تک اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ سارے سوالوں کا جواب مسکرا کر کے دے رہے ہیں اور غصہ کو پی جا رہے ہیں, میرے بھائیوں چیخ کر کے کہتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں, اور آخری رسول ہے, آخری پیغمبر ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. آپ نے کہا اس بات کی گواہی تم کیوں کر دے رہے ہو؟ تم نے تو ابھی میرا گریبان پکڑا تھا, تم کو تو یقین نہیں آ رہا تھا, قسم ہر بات تم کھلائے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی کتاب میں نے پڑھا ہے جو آخری رسول ہوں گے وہ غصہ کو پی جانے والے ہوں گے. میں نے آپ کو اتنا غصہ دلایا لیکن آپ نے غصہ نہ کیا, آپ نے غصے کو پر کنٹرول
कंट्रोल कर गया। आए अल्लाह के नबी, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि वाक़ईत अल्लाह के आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है, आखिरी ऋषि मुनि है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गुस्सा को पी जाने वाले थे और गुस्सा के ऊपर कंट्रोल कर जाने वाले थे। मुत्तकी वो है जो गुस्सा को पी जाया करता है, गुस्सा को पी जाया करता, कंट्रोल कर लेता है उससे के ऊपर। तीन बात हुई। मुत्तकी वो है जो लोगों की गलतियों को क्षमा कर दे, लोगों की गलतियों को माफ कर दे। मुत्तकी वो है जो अपने भाइयों को माफ कर दे, अपने रिश्तेदार की गलतियों को माफ कर दे, अपने समाज के लड़कियों को और लड़कों की गलतियों को माफ कर दे, माफ कर दे। हम और आप माफ करते हैं, दुश्मनी ऐसे पालते, अच्छा माफ करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे। अल्लाह भी माफ करने वाला है, और अल्लाह अगर माफ न करता तो कदमा के लोगों बताओ हम बुरा जिंदा होते, शराब हम पिए, जमीन के अंदर हम घूमे, जुआ हम खेलें और जमीन के अंदर एंजॉय भी करें, ज़िना हम करें, जलसों के अंदर करके लड़कियों को भगा करके न जाने उनके साथ नाजायज संबंध हम करें, और जलसों के बाद आकर के सोचे हम जलसा सुन करके आ रहे हैं, फिर भी हम जिंदा है। अल्लाह हमें माफ कर रहा है, ढील दे रहा है, छोड़ रहा है। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को माफ करते रहता है। हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह ताला माफ करता जा रहा है। शराब पीने के बाद भी अल्लाह ने माफ कर दिया, जुआ खेलने के बाद भी अल्लाह ने माफ कर दिया, ज़िना करने के बाद भी अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरी बहनों, तुम हिजाब के नाम पे, हिजाब तुम्हारे लिए तो, पर्दा तुम्हारे लिए जरूरी है। कुरान तो तुम्हारे मामले में यही कहता है, वनिसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जब तुम रास्ते में चला करो तो अपने ऊपर चादरें चढ़ा लो, अपने ऊपर तुम हिजाब डाल लो, अपने ऊपर तुम निकाब डाल लो। लेकिन तुमने नाफरमानी की है और तुम इतने टाइट कपड़े पहन करके चल रही हो, इतने स्टाइलिश कपड़े तुम पहन करके चल रही हो कि जवान तो छोड़ो, बूढ़ों की नजर भी तेरे ऊपर पड़ जाया करती है। हाय रे मुसलमान, इतने गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें भी माफ कर दिया है और हम जिंदा हैं। कोरोना की वबा में हम बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह वनाफीना लिन्नास। अल्लाह भी माफ करने वाला है। आई मुसलमानों, मुत्तकी अगर तुम बनना चाहते हो तो अपने अंदर तीसरी चौथी खूबी ये पैदा कर लो कि अपने आप के अंदर ये माफ करने वाली सलाहियत पैदा कर लो, तुम भी माफ करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी सवाल किया था अल्लाह के नबी से, शब कदर के मौके पे अल्लाह के नबी में कौन सी दुआ पढ़ूं? अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, ओ मेरी बीवी आयशा, जब तुम्हें वो कदर वाली रात मिल जाए, जब तुम्हें वो बाबरकत वाली रात मिल जाए, जब तुम्हें लैलतुल कद्र मिल जाए, तो आई मेरी बीवी ऐसी रात में और ऐसी अहमियत वाली रात में तुम अपनी ज़बान से पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ लिया करना। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ु, आय अल्लाह तू माफ करने वाला है, अफ़ु माफ करने वाला है, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, आय अल्लाह मुझे भी क्षमा कर दे, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, आय अल्लाह मेरी गलतियों को अल्लाह ढांक दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। ये कदर वाली रात में आई मेरी बीवी को अगर कदर वाली रात मिल जाए तो ये दुआ पढ़ना, माफी मांगना और माफ कर देना, ये दोनों वाला अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कितने लोग हैं जो अपने भाइयों को माफी नहीं कर रहे हैं, कसम खा है इसको माफी नहीं करेंगे, मर गया फिर भी कह रहे नहीं माफ करेंगे। अजीब बात है।
मेरे भाइयों, मोमिन वो नहीं है, मोमिन वो है, मुत्तकी वो है, जन्नती वो है जो अपनी जिंदगी में अपने भाइयों को माफ करते रहता हो, अपने भाइयों को क्षमा करते रहता हो। मेरे भाइयों, नबी अकरम की जिंदगी उठाओ तो मेरे भाइयों दंग रह जाओगे। कायनात हैरान है, कायनात ताज्जुब में पड़ी हुई है कि इतने ऐसे ऐसे कारनामे होने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को कैसे माफ कर दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफें दी गई, यहाँ तक कि आपको इबादत के अंदर खलील होने लगी। आप इबादत करने के लिए जाया करते थे, वह आपके पीठ के ऊपर न जाने गंदी गंदी चीजें लोग रख दिया करते थे। नबी अकरम को हिजरत करने का ऑर्डर आ गया, नबी अकरम ने हिजरत कर ली, मदीना, मक्का से मदीना चले गए और मदीना में जाने के बाद आप वहां पे रहे और आपने अपनी टीम को, अपनी जमात को आपने मजबूत किया और इतने ताकतवर बन गए। अल्लाह ताला ने इतने ताकतवर आपको बना दिया कि वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हिजरत कर गए थे और मक्का छोड़ करके गए थे, आज फातेह बनकर के मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आज मक्का को फतह करके दाखिल हो रहे हैं, फातेह बनकर के दाखिल हो रहे हैं। मक्का वालों ने, जिन्होंने सताया था, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने पत्थरों से वार किया था, जिन्होंने मजनू कहा था, दीवाना कहा था, पागल कहा था, आज वो छुपे हुए हैं, आज वो अपने घर के अंदर दाखिल हैं, आज अपने घरों के अंदर बंद कमरों के अंदर मौजूद हैं कि आज ना जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फैसला करेंगे। सबको मालूम था कि जो भी फातिह बनकर आता है अपने मुजरिमीन को बख्शता नहीं है, एक एक करके सबको कत्ल करने के ऑर्डर दे देंगे। हम तो कत्ल हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें तो मार दिया जाएगा, क्योंकि पहले के बादशाह जब हुकूमत किया करता था तो अपने मुजरिमीन और अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं रखता था, उसको मार दिया करता था। नबी अकरम फातिह बनकर के आए और आपने उसी खाना काबा का तवाफ किया और खाने काबा के अंदर जाकर के आपने नमाज अदा की और जो उस खाने काबा के अंदर मूर्तियां रखी हुई थी उसको आपने डंडे से गिराया। कुरान की आयत को पढ़ते हुए जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, इस आयत को पढ़ रहे थे और मूर्तियों की गिराते जा रहे थे। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को मिटने ही वाला था। मेरे भाइयों, उस खाने काबा से बाहर निकलते हैं और अल्लाह के नबी का अजीब गरीब ऐलान कर देते हैं और मक्का वालों डरो नहीं, घबराओ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेगा, किसी को फांसी की सजा न देगा, किसी को कत्ल न करेगा। आई मक्का वालों, ओ मेरे भाइयों, आओ और अपने गुनाहों का इकरार करो और माफी मांगते चले जाओ। एक एक आता गया और गुनाहों की माफी मांगता गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके माफ करते चले जा रहे हैं। जिन्होंने सताया था, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने गाली दी थी, जिन्होंने ऊँटनी के ओझड़ी आपके सजदे की हालत में आपके पीठ के ऊपर भी जिन्होंने रखा था, मेरे भाइयों, इन तमाम लोगों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया। एक आदमी आया और खड़े होकर के कहा कि अल्लाह के नबी, मैं हिमार इब्न असवद हूँ और मेरा जुर्म ये है, मेरी गलती है कि मैंने आपके ऊपर तीर चलाया था, लेकिन तीर आपके ऊपर ना लग करके आपकी बेटी के ऊपर लग गया। वो तीर जैसे ही लगा आपकी बेटी दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। मेरे भाइयों, हर किसी को अपने बेटियों से और बेटों से बड़ी मोहब्बत होती है। कौन है जिसकी बेटी को कोई मार दे, बेटा ही मार दे, बेटा ही को मार दिया, बेटी को मार दे, कोई भी, आप बताइए दिल के ऊपर हाथ रखकर उसको माफ करेंगे? मौका मिलेगा तो गोली वही मारेंगे, लाठी वही मारेंगे जान से। और आप हुकूमत की कुर्सी के ऊपर बराजमान है, अब इसको हम छोड़ेंगे? आज बदला लेते हैं बोटी बोटी करोड़ से। नबी ने ताज्जुब-खेज़ फैसला किया, ऐ हिबार, तुमने मेरी बेटी के ऊपर नतंजिगर बड़ी बेटी के ऊपर तूने तीर चलाया था,
हाल्ला के नबी मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपकी बेटी के ऊपर तीर भी चलाया और उसकी वजह से आपकी बेटी दुनिया से चली गई थी, हमल ज़ाय हो गया था और उस हमल की ज़ाय होने की वजह से आपकी बेटी ने सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया छोड़ करके चली गई। नबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई हिमार इब्न असवद, मैंने माफी का ऐलान कर दिया है, आज मैं कुछ ज्यादा न कहूंगा, वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने कभी कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज तो माफ कर दिया जाता है, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, आज तुम्हें भी माफ कर दिया जाता है। ऐ हिमार इब्न असवद जा मैंने तुमको भी माफ कर दिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इतना जबरदस्त मामला होने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस मुजरिम को भी माफ कर दिया। वला बीनान्नास, लोगों की खताओं को माफ करने वाला हो। आज हम और आप लोगों की गलतियों को, लोगों की खताओं को माफ नहीं करते हैं। अपने चचाओं से दुश्मनी करने वालों, अपने समाज के लोगों से बात न करने वालों, अपने बहनों से रिश्ता तोड़ने वालों, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के वाक़ियात के ऊपर नजर दौड़ा लो। मेरे भाइयों, एक मंजर वो भी कायनात के लोगों ने देखा, सुमामा बिन उसाल का बुखारी के अंदर पूरा वाक़या मौजूद है। सुमामा बिन उसाल बड़ा ही डेंजर किस्म का गवर्नर था, अपने इलाके का बड़ा ही जबरदस्त गवर्नर था, बड़ा ही डेंजर किस्म का गवर्नर था। उसने फैसला कर लिया था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मैं कत्ल कर दूंगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए उस सुमामा बिन उसाल ने बहुत ज्यादा कोशिशें की, नबी तक तो पहुंच न पाए, कई मर्तबा पहुंचे लेकिन कत्ल के अंदर वो कामयाब ना हुए, लेकिन फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को कत्ल कर डाला, बहुत से साथियों की गर्दनों को मार डाला, कत्ल कर दिया, कई साथियों को उसने जिंदा कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने जब उसको पकड़ करके मदीना के खंबे से बांध दिया, नबी अकरम ने फजर की नमाज पढ़ाई और जैसे आप पलटे, आपकी नजर खंबे के ऊपर पड़ी, आप फौरन उठ गए और उस खंबे के पास पहुंचे और आपने गौर व फिक्र किया कौन आदमी है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी हमें तो मालूम नहीं है, रात की तारीकी में मदीना की गलियों से गुजर रहा था, हमें ऐसा लगा कि कोई गुनहगार है, हमने पकड़ लिया कि कहीं मदीना के अंदर हमला न कर दे। नबी ने फरमाया आई लोगों तुम्हें मालूम नहीं है तुमने किसको पकड़ा है, आई लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने किसको पकड़ा है, तुमने उसको पकड़ा है जिसके पकड़ने की हमने कोशिश की थी। ये सुमामा बिन उसाल है जिसने हमारे बहुत से साथियों को कत्ल कर दिया है, जो मुझको कत्ल करने के लिए बड़ा ही परेशान था, तुमने ऐसे को कत्ल किया है। अब नबी अकरम अपने साथियों छोड़ करके सुमामा बिन उसाल की तरफ पलटे और सुमामा बिन उसाल से चंद सवालात किए। ऐ सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल इतना जल्दी हार नहीं मानता है, कुछ नहीं, मुझे मालूम है मैंने आपके साथियों को कत्ल किया, मुझे भी कत्ल कर दोगे। इन तक्तुल ज़ादमीन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, सवालों जवाब का सेशन बंद करो। वइन कुंता तुरीदुल माल, ऐ मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए तो बोलो कितना माल चाहिए, मैं तुम्हें उतना माल दे दूं। और अगर मोहम्मद मुझे छोड़ना चाहो, मेरे ऊपर एहसान करना चाहो तो एहसान का बदला एहसान है। आपको कोई जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका पैर नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिया है। कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ करना चाहो तो माफ कर दो, माल लेकर के छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने पूछा है सुमामा बिन उसाल, रात भर तुम इसी के अंदर बंधे रहे, कहा खाया कि नहीं, कहा कि नहीं,
भूख लगी है? बोला हाँ। देखिए मुजरिम में मुंह खोल, हाँ भूख लगी। नबी का कातिल, नबी के साथियों को मारने वाला आज नबी की आंखों के सामने, और उस दुश्मन के साथ बर्ताव मोहम्मद रसूलुल्लाह का देखिए मेरे भाइयों। अपने सहाबा से कहा जाओ मेरी ऊंटनी का दूध लेकर के आओ और इस दुश्मन को सुमामा बिन उसाल को तो पिलाओ। सुमामा बिन उसाल को पिलाया गया। एक दिन यही मामला गुजरा, 2 दिन यही मामला गुजरा, 3 दिन यही मामला गुजरा। 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने ऐसा फैसला सुनाया और ऐसा हुक्म नाफिज किया कि आसमान देखते रहे, आसमान ने भी देखा, जमीन ने भी देखा, कायनात के लोगों ने भी देखा, सुमामा बिन उसाल ने देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमामा, आई मेरे सहाबा सुमामा के पैरों से जंजीर को छोड़ दो, जंजीर खोल दो, इनके हाथों में जो जकड़े हुए जंजीर है इसको खोल दो और सुमामा को आजाद कर दो। नबी ने उस कातिल को भी माफ किया। सुमामा बिन उसाल को यकीन नहीं आ रहा है जिसका मैं दुश्मन का कत्ल करने के ऊपर आमादा था, अगर मेरे हाथों मोहम्मद चढ़ जाता तो मैं तो इसकी गर्दन उड़ा देता, मैं उसको तो मार देता, इनके साथियों को तो मैंने मारा ही था, इनको भी मैं मार देता। अरे कैसे हो रहा है? नबी के बारे में, मोहम्मद के बारे में मैंने क्या क्या सुना था और आप मोहम्मद मुझे माफ कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ, पलट कर की बार बार देख रहे, कहीं सहाबा तो, कहीं मोहम्मद के साथी तो कहीं पीछे तीर न चला दे, कहीं वार न कर दे। मस्जिद नबवी से बाहर निकला, कोई किसी ने पीछा न किया। सुमामा बिन उसाल अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार हुआ, मदीना से बाहर निकला। एक तालाब या कुएं के ऊपर उसने पानी, कुएं से पानी निकाला या एक तालाब के ऊपर उसने डुबकी लगाई, नहाया, वज़ू किया और वापस फिर मस्जिद नबवी के अंदर आया और चीख करके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह के रसूल है, वाकई अल्लाह के भेजे हुए बंदे और उसके रसूल है। और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं है। आए अल्लाह के रसूल मुझे भी उसी रास्ते में ले लीजिए, उसी मजहब के अंदर दाखिल कर दीजिए जिस मजहब के अंदर माफी करने का मामला हो, जिस मजहब के अंदर माफी करने को सिखाया जाता हो, जिस मजहब के अंदर ऐसा अखलाक हो, उस मजहब को ना अपनाओ तो कौन सा मजहब अपनाया जाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कातिल तक को भी माफ कर दिया। मुत्तकी कौन? जो लोगों की गलतियों को क्षमा कर दे, जो लोगों की गलतियों को माफ कर दे। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे चलो। अगर किसी को जन्नत में जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नफ्स कदम पे चल लो। वो बड़ा महान था, बड़ा महान पुरुष था और इससे बढ़कर के महान कौन हो सकता है जो अपने दुश्मन को, अपने कातिल को माफ कर देता हो। महान इमादित्य वरुण तपस परस्तात नहीं आया। अगर तुम्हें जन्नत में जाना हो, अगर तुम्हें मुत्तकी बनना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कर लो। नबी ने अपने दुश्मन तक को भी माफ कर दिया, अपने कातिल तक को भी माफ कर दिया। आई दुश्मनी मोलने वालों, अपने पड़ोसियों का दिल दुखाने वालों, अपने चचाओं से दिल दिखाने वालों, अपने रिश्तेदारों से बात न करने वालों, तौबा करो, माफी मांगो और अपने भाइयों के पास जाकर के माफी मांग लो। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। एक मुकदमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लेकर के हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर के आए। एक मुकदमा, अल्लाह के नबी बोलो बिलाल क्या बात है? नबी ने फरमाया आई बिलाल बताओ क्या मामला है? तुम बड़े दुखी लग रहे हो, तुम बड़े परेशान हो। ऐ बिलाल क्या बोलना चाहते हो? बोलो। हजरत बिलाल ने कहा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहूं, मेरा दिल तो धड़क रहा है, मुझे बड़ी ज्यादा तकलीफ पहुंची है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल बताओ क्यों तकलीफ तुम्हें पहुंची है, क्या हुआ बिलाल? हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के नबी अबू ज़र गफ्फारी को जानते हैं? कहा कि हम जानता हूं। अबू ज़र गफ्फारी ने अल्लाह के नबी को जब काले के ताना दिए कि तू काला तेरी मां काली, काला कहा है? अल्लाह के नबी क्या काला होना गलत है, मैं काला हूं तो किया हुआ, अल्लाह से तो कम से कम डरने वाला हूं। अबू ज़र गफ्फारी ने मुझे काला कलोटा कहा है, अगर मुझे कहता तो चलो मैं माफ कर देता, लेकिन अल्लाह के नबी मेरी मां को भी उसने काली कहा है और काली की औलाद कह दिया है। आज हम और आप देखते हैं ना किस कोई काला है बोल देते हैं, कोई गरीब है तो गरीबी के ताना दे रहे हैं, कोई लड़की सुंदर नहीं खूबसूरत नहीं काली है थोड़ी ज्यादा मोटी है उसको उसी का ताना दिया जा रहा है। कुरान की आयत को हमने और आपने उठा दिया है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, तुम किसी को बुरे अलकाब से न पुकारो। लेकिन हम और आप अपने आप को तो मुसलमान भी समझते हैं और अपने भाइयों को कोई अगर एक पैर से लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा कह के पुकार रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। एक पैर उनका कटा हुआ है तो उनको लंगड़ा कह रहे हैं। मेरे भाइयों कोई काला है तो उसको कलुआ कह रहे हैं। अजीब व गरीब मसला है। कभी किसी ने उसकी चोरी कर ली तो उसको चोरवा कह रहे हैं। हाय अफसोस, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कुरान कहता किसी को बुरे अलक़ाब से न पुकारो। नबी ने ये सुना, हाँ अबू ज़र गफ्फारी ने ये कहा है तुम्हें काला कलूटा, अल्लाह के नबी अबू ज़र गफ्फारी ने मुझे काला कहा है, कलूटा कहा है, और मेरी माँ को भी उसने काला कलूटा कहा है। आपको मालूम है हजरत बिलाल के बारे में, हजरत बिलाल बहुत ज्यादा काले थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसी बिलाल को जन्नत के अंदर चलते हुए पाया था। जब आपने जन्नत की सैर की थी, जब आपने जन्नत को देखा था तो आपकी आगे जूतियों की आवाज चलने की आई। हजरत बिलाल से, हजरत जिब्राइल से आपने पूछा था, ऐ जिब्राइल मेरे आगे आगे चलने की जो जूतियों की आवाज आ रही है ये कौन मेरे आगे आगे चल रहा है? हजरत जिब्राइल ने कहा था ये तेरी उम्मती है, तेरे सहाबा है, ये बिलाल है, अभी दुनिया में है लेकिन जन्नत उसके लिए कन्फर्म है। आई बिलाल तुम्हें हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने ऐसा कहा है। हाँ अल्लाह के नबी आपने अबू ज़र गफ्फारी को बुलाया, आई अबू ज़र गफ्फारी तुमने इस्लाम लाया है, तुमने मोहम्मद का कलेमा भी पढ़ा है, तुम मुझे मोहम्मद भी रसूलुल्लाह भी मानते हो, तुम इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। इस्लाम के अंदर कोई काला गोरा कोई मायने नहीं रखता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई झोंपड़ी में सोता है कोई बिल्डिंग के अंदर सोता है, कोई बड़ा महंगा कपड़ा पहन करके घूमता है, कोई फटा पुराना कपड़ा पहन करके घूमता है। अल्लाह की नजर में ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है। कोई बड़ा गोरा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा हैंडसम है, बड़ी खूबसूरत कोई है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अल्लाह तेरे कपड़ों को तेरे जिस्मों को नहीं देखता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आई अबू ज़र गफ्फारी तुम्हें मालूम है अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़ा तकवा वाला, सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है जो तकवा के मामले में आला मर्तबे के ऊपर फाइज हो, जो तकवा में सबसे ज्यादा ऊंची कैटेगरी के अंदर खड़ा हो, वही अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा अच्छा है। काला होना कोई गायब की बात नहीं है, गोरा होना कोई फख्र की बात नहीं है, अमीर होना कोई फख्र की बात नहीं है, गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, डॉक्टर बन जाना, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाना बहुत बड़ी फख्र की बात नहीं है। अल्लाह के नजर में, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी इज्जत और फख्र की बात यह है कि तकवा वाले बन जाओ। मेरे भाइयों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा जो तकवा
तकवा वाला होगा वही अल्लाह की नजर में इज्जत वाला होगा। आई अबू ज़र गफ्फारी, ये काला हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह की नजर में बड़ा तकवा वाला है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। आई अबू ज़र गफ्फारी, तूने बहुत गलत बात कह दी है, तूने जमाना जाहिलियत को साबित कर दिया है। नबी को ये समझाना था मेरे भाइयों। अबू ज़र गफ्फारी बाहर निकले, हजरत बिलाल को पकड़ा और पकड़ने के बाद आपको पकड़ करके रोने लगे। आई बिलाल, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी जबान से गलत बात बोल दिया। आई बिलाल, माफ कर दे, माफ कर दे। हजरत बिलाल को तो बड़ा गुस्सा आया था, माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम था माफ करना ये अल्लाह को ज्यादा बड़ा पसंद है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने जैसे माफी मांगी, हजरत बिलाल ने उनको गले से लगाया और माफ कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो अपने दुश्मनों को, अपने दिल को दुखाने वाले को माफ कर दिया करते थे। ये चार क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो, तब मुत्तकी हो, तब जन्नती हो। मेरे भाइयों, आपके यहाँ का जलसा बहुत देर तक चलता है और इतने भीड़ तो जुमे के खुतबे में भी हुआ करती है। मैंने कई मरतबा इस इलाके में आकर के मैंने कहा है कि बंगाल के तरीके पे प्रोग्राम करूँ, 12-1 बजे तक जलसा ख़त्म, पब्लिक जाकर के सोती भी है और फजर की नमाज वगैरह पढ़ करके अपना काम भी करना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इधर फर्ज कर लिया कि नहीं फजर तक चलाना ही है, लिख देता रजिस्टर में हत्ता मतलाइल फज्र। मेरे भाइयों, अजीब हालत है, कोई बात नहीं है। मुझे बहुत दूर का सफर करके मैं आया हूँ, कंटिन्यू 8 घंटा बाई कार में आया हूँ और मुझे फिर 8 घंटा सफर करके मुझे ड्यूटी करनी है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत ही सख्त हो चुकी है टीचर के ताल्लुक से कि आपको 9 बजे पहुंचना है, ड्यूटी करना है, आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद फिर आपका वो हाजिरी कबूल नहीं की जाती है। अगर 9 साढ़े 9 बजे बाद अगर आप पहुंचते हैं तो परेशानी हो जाती है। मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में फिर वफा की तो आपसे मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। शुक्र अदा करते हैं मदरसा हिया सुन्नह के जिम्मेदारान का कि आपने हमें बुलाया और इतने लोगों का कि आप इतने देर तक रुक करके आप